ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ। ਜੈਸੇ ਸੱਚ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਰਜ਼ਾਈ। ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਆ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਝ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਸਭ ਅਸਨਾਈ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ। ਕਿਆ ਹੋ ਕਥੇ ਕਥੇ ਕਥ ਦੇਖਾ, ਮੈਂ ਅਕਥ ਨਾ ਕਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਹੈ ਸੋਈ ਆਖਾਂ, ਤਿਲ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਆਖਾਂ, ਤਿਲ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਸੰਪੰਨ ਸਰਬ ਦੁਖ ਹਰਤਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ। ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਐਸੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ
ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 868 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋ ਰਾਖੈ ਰਾਖਣਹਾਰ ਤਿਸ ਕਾ ਅੰਗ ਕਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਰਾਖਣਹਾਰ ਉਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਮ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਲੋਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਕਦੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਰਾਖਣਹਾਰ ਸੰਭਾਰ ਜਨਾ ਸਗਲੇ ਛਾੜ ਵਿਚਾਰ ਮਨਾ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਘਰਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
इन्ना सुंदर शरीर दे दिता, अंग पैर दे दिते, ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे उस पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु ने सानू बख्शिश कीते। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने तू की सी, तेरी होंद की सी। अज मनुख अपनी होंद का बड़ा मान करदा है, अपनी होंद का बड़ा दूसरिਆਂ ਨੂੰ एहसास कराउंदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने आ मैं तेनू तेरी होंद बारे दसां, जिन्हें तेरे ते एडा रहम करम कीता, इस पानी ते जिन तू घरिया, इस एक पानी दे बूंद तो रक्त ते बिंद तो कहते ने उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने इन्ना सुंदर शरीर बना दिता, इन्ना सुंदर शरीर बना दिता। माटी काले देहरा करिया, उगत जोत ले सुरत परीखिया, मात गर्भ में जिन तू रख। फिर कहते केवल शरीर ही नहीं बनाया, परमात्मा ने तेनू समझ दिती, तेनू दिमाग दिता, तेनू विचार दिती, तेनू चंगे ते माड़े दी समझ दिती। इस संसार दे विच विचरण वास्ते, उस परमात्मा दे रंग तमाशिਆਂ ਨੂੰ देखण वास्ते परमात्मा ने तेनू अखां दित्तियां। उस परमात्मा की गल सुनने वास्ते तेनू परमात्मा ने कन दिते। उस परमात्मा के गुण गाउण वास्ते तेनू प्रभु परमेश्वर ने रसना दी। कहंदे जिन्हें तेनू सब कुछ दिता है, तू करना की कर, राखन हार समारजन। वो जिहड़ा रखण हारा है, रखण की समर्था रख दा मालिक है, तू कहंदे ने ओदी संभाल कर, ओदे नाम की संभाल कर। किहड़ी किहड़े ओदे गुणां की गल करिए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जिन दिए तुद बाप महतारी, जिन दिए भरात पुतहारी। माता पिता भैन भरा ये सारा समाज ये संबंध किवें बनिया ते बनाउण वाला कौन है, देण वाला कौन है? सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे जदों सब कुछ करन ते कराउण वाला वो परमात्मा है, आद अंत जो राखण हारा, तिस्यो प्रीत ना करे गवारा। जेड़ा आद तो लैके अंत तक साडी जीवां दी रखिया करन वाला है। पर कहंदे ने जीव उस परमात्मा नूं भुल जांदा है, जीव उस परमात्मा नूं विसार दिंदा है, ते विसार देण दा करके जीवन दे विच दुख बन जांदे ने, संताप बन जांदे ने, मुश्किलां बन जांदियां ने, कला कलेश आके घेर लैंदे ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने भाई वो परमात्मा जिस जीव नूं ये काम क्रोध विकार आदिकां दे विचों बाहर कढण वास्ते, मदद करन वास्ते, सहायता करन वास्ते ओदा पक्ष पूरदा है ना, उन्होंने फिर इस गल की समझ आ जाती है कि राखा एक हमारा स्वामी, सकल घटा का अंतरजामी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने भाई उस परमात्मा दे नाम की आराधना कर, उस परमात्मा दे नाम की संभाल कर, जेड़ा जीव नूं विकारां विचों कढ के उन्होंने सच दे मार्ग ते पा के ते जीवन की जिहड़ी मंजिल है उस मंजिल तक पहुंचाउण वास्ते सहायक बन जाता है। उहदी कितनी वड्डी समर्था है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने उहदी समर्था देख,
कि मात गर्भ में अगन ना जो है। जदों जीव माता दे उदर विच हुंदा है, फिर कहंदे ने जिहड़ी ये पेड़ दी अगन है ना, इहदी बहुत तपश है, पर कहंदे उसे ही उदर दे विच इस बहुत भयंकर अग दे कोल रहिंदा होया भी जीव उन्हों रंचक मात्र भी वो परमात्मा सेक नहीं लगन दिंदा, ताप नहीं लगन दिंदा। कहंदे देख जिन्हें तेनू माता दे उदर दे विच इस जठरा अगन तो बचा के रखिया न, तू संसार विच आके उहदे नाम दी आराधना कर। वो तेनू इस संसार विच रहिंदियां होया भी काम क्रोध लोभ मोह हंकार इस वकारां दी बलदी हुई अग दे विच जलन नहीं देवेगा। कहंदे तू उस मालक दे अगे अरदास करिया कर, हे मेरे मालक जे तू माता दे उदर दे विच जठरा अगन दे कोलों मैनू बचा के रखिया है, ते इस संसार दे विच ये जिहड़ी विकारां दी अग है इहदे कोलों भी तू ही बचा के रख सकदा है। इस करके हे मेरे मालक जी मैनू ते केवल तेरा आसरा है, तेरे तो बिना मैनू दूसरा आसरा ही कोई नहीं है। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तै तुम राखन हारे, पावक सागर अथाह लहर में तारो तारन हारे। माधो तू ठाकुर सिर मोरा, इहां उहां तुहारो तोरा। मैनू ते केवल वाहिगुरु जी तेरा ही आसरा है, तेरे तो बिना इस जिंद दा कोई आसरा नहीं है दिखाई दिंदा। क्योंकि जे माता दे उदर दी गल करिए ते उत्थे भी तेरा ही मैनू आसरा सी, ते जे इस संसार नू पार करन वास्ते सहारे दी लोड़ है, जीवन नू सफला बनाउण वास्ते सहारे दी लोड़ है। हे मेरे मालक जी इत्थे भी मैनू तेरा ही सहारा है, क्योंकि तेरे सहारे तो बिना की है मानुख की टेक बिरथी सब जान। देवन को एक है भगवान, जिसका दिए रहे अगाए, बहु न तिहना लागे आए, मारे राखे एको आप, मांग के किश ना ही हार। तिसका हुक्म बूझ सुख होए। गल ओदे हुक्म नूं प्रवान कर लैण दी है। कहंदे जिन्हां ने ओदे हुक्म नूं समझ लिया, ओदे हुक्म नूं प्रवान कर लिया, ते गुरु प्यारिओ फिर की लाहौर दियां ओ तत्तियां तवियां भी क्यों ना होण। बथेरा इन्हां दुनियादारां दे वल्लों यतन कीता गया कि असीं इस सच दी आवाज़ नूं सदा वास्ते बंद कर देना। ਉਹ सच की आवाज़ नूं बंद करन वास्ते स्वार्थ की खातर लोभ की खातर जीवन की मर्यादा नूं तलांजलि दे के जो समाज की अगवाई करन वास्ते सर्ब सांझा उपदेश है उन्होंने अणगौलिया करके केवल झूठ नूं प्रचंड करन वास्ते सारे यतन किए गए। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहादत, उस विच बाबा पिरथी चंद ने भी कोई कसर नहीं छड्डी। दीवान चंदू ने भी अपना सारा ताण लाया है। नक्शबंदी लहर जिहड़ी बादशाह जहांगीर नूं पूरे जोर दे नाल ये प्रेरणा करदी है कि जे समय दे नाल इस गुरु नानक दे घर विचों उठण वाली जिहड़ी सच दी आवाज़ है इनू बंद ना कीता गया ते आउण वाले समय विच ये सच दे मार्ग दे पांधी तेरे झूठ
ते तेरियां ज्यादतियां दे वास्ते भी खतरा बन सकते हैं। सर्ब सांझा ग्रंथ तैयार कर दिता गया है, तुहाडे दरबार दे कवियां दी रचना नूं विच दर्ज नहीं किया गया। हुक्म दे नाल सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज जी नूं गिरफ्तार करके लाहौर लिजाया गया। दीवान चंदू ने, क्योंकि उस समय का एक भरम सी कि जे बच्ची दी मंगनी हो जाए तो दोबारा छुट जाए, तो उस भरम का करके दोबारा कोई उस बच्ची का रिश्ता करने वास्ते तैयार नहीं, क्यों कि यह शुभ सगन नहीं है, एक भरम सी। गुरमत ने ऐसे भरमां नूं प्रवान नहीं किया। इस भरम का करके दीवान चंदू भी बहुत परेशान है, रोज परेशान हुंदा है। अज मौका मिलिया देख के सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे तशद्दद ढाउण वास्ते सारा ताण ला दिता, सारा ताण ला दिता है। तवी उहदे थल्ले अग दे भांबड़ मचाए गए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं उस तवी ते बिठा दिता गया है। अग का सुभाव है साड़ना। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते भी उस परमात्मा की याद विच जुड़े हुए बैठे ने, क्योंकि वो महान सतगुरु जी कहते ने, मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे। वो भी तो अग ही सी ना, माता दे उधर दी अग भी कहते कुछ बिगाड़ ना सकी, ते जे मेरे मालिका तू मैनू माता दी उधर दी अग तो बचा सकदा है, बचा के रखिया है, ते ये लकड़ां दी अग मेरा की बिगाड़ सकती है। गल विश्वास दी है, भरोसे दी है। एक पूर्णा समाज दे अगे पाया गया कि आसरा लेना ते केवल परमात्मा दा, पूजा करनी ते केवल अकाल दी पूजा तो बिना होर किसी दी पूजा नहीं करनी। आसरा लेना ते परमात्मा दा लेना, क्योंकि होर किसी दा आसरा लभ्या पता नहीं जिहदा अज आसरा ले रहे हैं कल नूं वो रहना कि नहीं रहना, क्योंकि जिहड़ा इस संसार ते जन्म लैके आया उन्हें किसी ना किसी दिन इस संसार तो चले जाना। कहते एक पार ब्रह्म परमेश्वर करता पुरख वाहिगुरु जी ऐसी हस्ती है जो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। उस तपदी हुई तवी ते बैठ के भी किसी प्रकार का शिकवा नहीं, रोस नहीं है। उस तपदी हुई तवी ते बैठ के भी तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। वो महान सतगुरु सच्चे पातशाह जी केवल क्या नहीं है, उपदेश ही नहीं देता, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने प्रैक्टिकल रूप विच करके विखाया है। अज दे बचनां विच साहिब जी कह रहे ने कि मात गर्भ में अगणना जो है, माता दे उदर दे विच जिहड़ी जठरा अगन है, ये किसी प्रकार भी साड़दी नहीं है। क्यों? कारण की है? कहंदे ने उत्थे परमात्मा दे नाल जीव दी लिव जुड़ी हुई है। परमात्मा दे नाल लिव जुड़ी हुई है, ते कहंदे वो जुड़ी हुई लिव दा करके ही माता दे उधर दी जिहड़ी जठरा अगन है ये साड़दी नहीं है। फिर साहिब जी कहंदे ने काम क्रोध लोभ मोह ना पोह है, ते जिन्हां नूं परमेश्वर दे नाम दा आसरा बन गया, फिर उन्हां नूं इस जीवन दे विच भी किसी प्रकार भी काम आके अपना प्रभाव नहीं पाउंदा, क्रोध उन्हां ते भारी नहीं हुंदा, लोभ दे विच वो ग्रसे नहीं रहिंदे, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा बिरद ही ऐसा है।
ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪੰਥ ਸੀ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਧਸ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਮਝਾਈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣੇ, पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने, आपन स्त्री सो रत हुई, रहत वंद गुर का सिंह सोई। सानू सारियां नू एक परिवार का रिश्ता दे दिता। ये जो पंथ परिवार का रिश्ता है, किस वास्ते कि जिवें तू घर दे परिवार विच रहना ते घर विच विचरदा होया तेरी जिहड़ी बिरती है वो टिकी रहिंदी है। घर विच विचरदिया होया जिहड़ी तेरा नजरिया है जे समान बनिया रहिंदा, ये मेरी धी है, ये मेरी भैन है, ये मेरी मां है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पिता है, ये मेरा पति है। कहंदे जदों तू समाज विच भी विचरे, समाज विच भी तेरी ये समान नजरिया बनिया रहे। जदों ये समान नजरिया बनिया रहेगा ते कदी साडे जीवन ते आके काम अपना प्रभाव नहीं पावेगा, वासना दा फुरना आके प्रभावित नहीं करेगा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने मनुख दा मन ऐसा है, ये काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, इन्हां तो बचना सौखा नहीं है पर नामुमकिन नहीं है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते कि इन्हां तो बचना नामुमकिन नहीं है, पर बचिया किवें जावेगा? जदों असीं गुरु दी शरण विच आके अरदास करांगे, सतगुरु सच्चे पातशाह जी हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले,
सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, नेह मलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की गुरु रामदास, राखो शरणाई। जदों गुरु दे चरनां दे विच आके अरदास करांगे सतगुर जीओ, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। दया करो किश मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। जदों गुरु दे चरनां दे विच आके अपने अवगुणां नूं लुकावांगे नहीं, छुपावांगे नहीं, जदों गुरु दे चरनां दे विच आके अपनियां बुराइयां अपने अवगुणां दी तौबा करांगे, ते फिर गुरु करदा की है? गुरु प्यारिओ, पिछला अवगुण बख्श लै, प्रभ आगे मार्ग। सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते ने कि मात गर्भ में अग्न ना जो है, काम क्रोध लोभ मोह ना पोह है। जिवें माता दे उदर दे विच जठरा अग्न साड़दी नहीं है, कहते जिन्हां दा पख करन वाला परमात्मा बन जाता है ना, वो संसार दे विच विचरदियां होयां भी उन्हां नूं ये काम क्रोध लोभ मोह हंकार जिहड़े विषय ने, जिहड़े विकार ने ना, ये पहुंचते नहीं है, ये अपने प्रभाव थले नहीं लै सकते, क्योंकि वो करदे की ने? साध संग जपै निरंकार, निंदक कै मोह लागै शार। दो तरह दीयां बिरतियां दा जिक्र कीता है। एक गुरमुख जन ने जेड़े गुरु दी शरण विच पै के गुरु दी मत नूं ग्रहण करके अपना जीवन गुरु दी मत अनुसार बतीत करते हैं। एक अपनी मत दे मगर लगन वाले ने, असल दे विच अपनी मत दे मगर लगन वाला ही दूसरे लिए बुरा भला कहंदा। जिन्हों गुरु दी मत जिन्हें ग्रहण कर ली, वो फिर दूसरे नूं बुरा भला नहीं कहंदा। अपनी मत दे मगर लगन वाला दूसरिਆਂ नूं बुरा भला कहंदा है, दूसरिਆਂ दी निंदिया करदा है, दूसरिਆਂ दी चुगली करदा है, दूसरिਆਂ नूं नीवां दिखाउण दा यतन करदा है। गुरु दी मत जिन्हें प्राप्त कर ली, वो ते फिर सारिਆਂ दे विच ही परमात्मा दी जोत नूं देखदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कह रहे ने कि साध संग जपै निरंकार, संगत विच बैठ के परमात्मा दे नाम दी आराधना करते ने, ते अपनी मत दे मगर लगन वाले, अपनी मत दे मगर चलन वाले दूसरियां दी केवल निंदिया ही करते हैं। ते कहते ने जेड़े गुरु दी संगत विच पै के परमात्मा दे नाम दी आराधना करते ने, कहते उन्हां नूं फिर परमात्मा दी दरगाह दे विच किहड़ा स्थान प्राप्त हुंदा? रे रे दरगाह कहे ना को, आओ बैठ आदर शुभ देओ। ते जेड़े दूसरियां दी निंदिया ही करते रहिंदे ने, सतगुरु जी कहते ने वो मूर्ख ने, उन्होंने सियाणे नहीं कहा जा सकता। ये वखरी गल है, निंदिया करने वाला अपने आप को ज्यादा सियाणा समझदा, पर सतगुरु जी कहते नहीं, जेड़ा दूसरे की निंदिया करता है ना, वो मूर्ख है। निंदा भली किसे की ना ही, मनमुख मुग्ध करेन, वो मनमुख है, वो मूर्ख है, पर कहते करी जा रहा है। निंदिया ते कहते किसी दी भी चंगी नहीं है, बुरे दी भी बुराई करना चंगी गल नहीं है, क्योंकि किसी दी बुराई नूं चितार के तू आप चंगा नहीं बन सकता। अपनी बुराई नूं जान के तू चंगा बन सकता है। अपनी बुराई का एहसास हो जाए, मेरे विच आ औगण है, मैं झूठ बोलदा, ये मेरा औगण है, मैं झूठ नहीं बोलना, चंगा हो जाएगा। मैं हंकार करदा, मैं हंकार नहीं करना, चंगे बन जावांगे।
पर होया कि मनुख आप ते ये सब कुछ करनों हटना नहीं चाहता, पर सोचदा कि मैं दूसरिਆਂ ਨੂੰ हटाउणा, मैं किसी की बुराई करा कोई गल नहीं, पर मेरी बुराई करने वाला बुराई करके जाए किथे। मैं झूठ बोलना कोई गल नहीं, पर कोई आके मैनू झूठी गल सुनावे वो कौन हुंदा है। बड़ा प्यारा बचन अमृत बाणी दे विच आउंदा है, कहंदे ने बाबा फरीद साहब परमात्मा दे नाल गलबात करते ने, जदों संसार ते उन्हां संसारियां दे हालात देखे ने, वख-वख धर्मां दे अनुयायी अपने धर्म की रीति अनुसार धर्म के कर्म कर रहे ने, पर वेख्या की है जिहड़ा धर्म के कर्म करन वाला ते कराउण वाला है वो भी अपना धर्मी पुणा बहाल नहीं रख रहा। वो सिर्फ करन ते कराउण ते एक सीमित है कि मैं धर्म का कर्म कर रहा ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ धर्म का कर्म कराउणा है, पर जिहड़ी धर्म की असली सिक्ख्या ना कहंदे आप कमा रहा ते ना दूसरिਆਂ ਨੂੰ कमाउण की प्रेरणा कर रहा। फिर कहंदे परमात्मा दे नाल सवाल किया, हे रब जी ये संसार ते सारे ही धर्म के कर्म करने वाले तुहाडे नाल मिलना चाहुंदे ने, दूसरिਆਂ ਨੂੰ तुहाडे नाल मिलन का रस्ता दसन का यतन करते ने, पर जदों मैं उन्होंने देखा मैनूं लगा कि इस तरीके दे नाल तुहाडे नाल मिलिया नहीं जा सकता, तुहाडे नाल मिलाप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कहंदे ये जिहड़ा कर्म किया जा रहा ये केवल विखावे का किया जा रहा, इहदे विच असली जामा नहीं पहनाया जा रहा, ना पहनिया जा रहा ना पहनाया जा रहा। फिर मेरा तुहाडे नाल मिलाप किवें हो जावे? क्योंकि जो मैं देखा है कि धर्म के आगुआं ने दूसरिਆਂ ਨੂੰ चंगे बनाउण वाल सारा जोर लाया, पर जो अपने जीवन दीयां बुराइयां ने उन्हां नूं कदी मिटाउण वाले पासे नहीं चले। ते कहंदे भगत जी ने फिर जदों परमात्मा दे नाल इस तरह विचार कीती ते जवाब की मिलिया सी, भगत जी ने वो अपनी रचना दे विच साडे सामने रखिया है। किस वास्ते? कि भलिया तू संसार नूं साधण वाले पासे ना चल, तू दूसरिਆਂ ਨੂੰ सुधारन वाले पासे ना चल। मैनू जो एहसास होया, मैनू जो समझ आई वो गल की है, तू अपने आप नूं सवार ला, सारा संसार ही सवारिया गया। आखो सतनाम। फरीदा आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए। कहंदे ने तू अपने आप नूं सवार, आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। तेनू थां थां ते जाके मुहताजी करन दी लोड़ नहीं है, किसी दी चाकरी करन दी लोड़ नहीं, किसी दी जी हजूरी करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि मानुख की टेक बिरथी सब जान। जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। कहंदे तू मेरा बन जा, सारा संसार तेरा बन जावेगा। ते जदों ये अमृत बचनां दे विचों असीं पढ़दे हां ते फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ये गवाही कर दे के साडा भरोसा पक्का करदे ने। वो किहड़ा भरोसा है? आओ सतगुरां जी दे बचनां नूं सारे रल के पढ़ीए तां कि साडा विश्वास वध जावे। राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी, राखा राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी।
सतगुरु सच्चे पातशाह जी ये साडा विश्वास पक्का कराउंदे ने कि हे जीव तेरे मन का यह विश्वास पक्का बन जाए कि साडा सारियां दा रखवाला कौन है? पार ब्रह्म परमेश्वर, जेड़ा सारियां दे दिलां दियां जानन वाला है, जेड़ा जरे जरे दे विच रमिया होया है, ओदे तो ना कोई ओला रख सकदा, ना कोई पर्दा रख सकदा है। वो सारियां नूं देख रहा है ते जो जो जीव कर्म कर रहा है उन्हां नूं भी देख रहा है। पर कहंदे ओदी वडियाई की है? कोई बुरा कर्म कर रहा, कोई चंगा कर्म कर रहा, ओदे घर विच वितकरा कोई नहीं है। कहंदे ओ जीवां दे औगणां नूं देखदा होया भी जीवां ते अपनी ओने किरपा बनाई हुई है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी सच्चे पातशाह जी दे बचन ने कि दीनन की प्रतिपाल करे नित संत उभार गनीमन गारे, पछ पशु नग नाग नरादो सर्व समय सबको प्रतिपाले, पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचारे, दीन दयाल दया निध दोखन देखत है पर देत न हारे। कहंदे वो साडे सारे कर्मां नूं देख रहा है पर देन लग्या किसी प्रकार का वह वितकरा नहीं करता। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते जिन्हां दा ये भरोसा बन गया, जेड़े परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़ गए ना, वो विकारां तो किवें बचाउंदा है। राम कवच दास का सनाह, दूत दुष्ट तिस पोहत नाहे। सतगुरु जी कहते ने परमात्मा का नाम सेवक दे वास्ते सलाह तो भाव है संजो। जिवें रण दे मैदान विच जूझण वाला योधा संजो पहन के जाता है कि दुश्मन दे हथियार दा होया वार उन्हों कट ना सके। कहंदे ने इसे तरह ही परमेश्वर दे प्यारियां दा परमेश्वर दा नाम मानो एक संजो है, जिस संजो दा करके कहंदे ने ये जेड़े बाहरी वार ने ना विकारां वल्लों वार हुंदे ने मन दे उपर, जदों मन नूं परमात्मा दे नाम दी संजोग मिल गई फिर कहंदे ने ये विकार मन नूं अपने किसी भी प्रभाव दे थल्ले नहीं लैके चलदे, फिर ये मन दे प्रभाव दे थल्ले चलदे ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे जो जो गर्भ करे सो जाए। कहंदे इस गल दा ख्याल रखना, जिन्हें हंकार कीता है, हंकारी मनुख अपने जीवन की बाजी अजाई ही गवा के चलिया जाता है। गरीब दास की प्रभ शरण आए, जेड़ा निमाणा बन जाता है, जिहदे हिरदे विच निमरता आ जाती है, उन्हों परमात्मा की शरण प्राप्त होती है। हंकारी का जीवन अजाई चलिया जाता है, निमरता वालियां नूं प्रभु की शरण प्राप्त हो जाती है। बड़ा सुंदर उपदेश सतगुरु जी ने किया कि जे साडे जीवन में हंकार है तो असी अज तो उस हंकार नूं त्यागना कर दईए। सतगुरु जी कहंदे ने जो जो शरण पया हर राए, सो दास रखिया अपने कंठ लाए, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरद स्वामी संदा। जो जो शरण आए, जो भी गुरु की शरण में आया है, धर्मी आया, पापी आया, पुन्नी आया, चंगा आया, माड़ा आया, कहंदे ने गुरु ने उन्हों अपने सीने नाल लाया। छोटी जी घटना मैं आप जी दे नाल सांझी करा। भाई बिधि चंद जदों गुरु शरण विच नहीं सी आया, उहदी किरत की सी, कर्म की सी? चोरी करना। जदों गुरु की शरण प्राप्त हुई ते गुरु ने कृपा कर दी, मेहर भरिया सिर ते हथ रखिया, विचों मार कढ़ियां बुराइयां, सारियां बुराइयां ही मिटा दित्तियां। भाई बिधि चंद गुरु का प्यारा सिख बन गया। सतगुरु जी कहंदे ने जो भी गुरु की शरण विच आया है, जो भी गुरु की हजूरी विच आया है, सो दास रखिया अपने कंठ लाए। गुरु ने कृपा कर दी, उन्होंने अपना बना लिया। जे को बहुत करे अहंकार, वो खिन में रुलता खाकू नाल। जे कोई हंकार करदा ते यह भी साडे सामने उदाहरण है।
कि पैंदे खां हंकार किया कि गुरु साहब ने जंगा मेरा करके जितियां ने, ते हंकार करने वाला कहते मिट्टी विच रुल जाता है। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज जी कहते ने वो खिन में रुलता खाकू राल हंकारी मनुख मिट्टी विच मिल जाता है पी साचा होवनहार सदा सदा जाही बलहार। जो आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने वो परमात्मा सदा कायम रहन वाला है, हुण भी मौजूद है, पहलों भी मौजूद सी, आने वाले समय दे विच ही उसने मौजूद रहना है। मैं उस तो बलहार जाना हाँ। क्यों बलहार जाना हाँ? सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने कि हे भाई वो परमात्मा अपने प्यारियां दी जिंद दा आसरा है। सदा सदा जाई बलहार अपने दास रखे कृपा धार। नानक कै प्रभ प्राण आधार। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने कि हे भाई नानक दे प्रभु जी अपने दासां दी जिंद दा आसरा हन। प्रभु अपने दासां ते कृपा धार के उन्हां नूं विकारां दी दलदल दे विच डिग्गण तो बचा लैंदा है। कहंदे ने भाई तू उस परमात्मा दी शरण विच आ, उस परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़ना कर जिहड़ा जरे जरे दे विच रमिया होया है, जिहड़ा साडा सारे ही जीवां दा आसरा है, भुलिया होया नूं सही रस्ते ते लियाउण वाला है। कहंदे ने वो वड्डे भागां वाले ने जिन्हां नूं ऐसे गुरु दा साथ, ऐसे गुरु दी शरण प्राप्त हो जाती है। कहंदे तू भी आके गुरु दे कोलों मंगिया कर। सतगुरु सच्चे पातशाह जी विसर नाही दातार अपना नाम देओ, गुण गावां दिन रात नानक चाओ। इहो भुलां चुकां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।